मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल कारण है, इसके सिवा क्या है? जी जरा प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ पढ़ो अनामिका। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य इसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ, मैं बड़ा धनी बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। हाँ जी बस बहुत है। ये हर्षा जी आप पढ़ना चाहेंगी इंग्लिश में सेवेंथ से? Sure, yes. So, seventh is, the demonic people do not know action from inaction. Also, neither purity nor good conduct, nor truth is found in them. The second topic of Asura Vritti covers between verses 7 to 15, deals with the nature and conduct of the Asurika, demonic people. This verse points the ignorance regarding action and inaction. Also the lack of purity, good conduct and truth. The demonic fails to distinguish properly between pravritti and nivritti. What course of action to take and what to avoid. What he ought to do and what not he should do. He chooses a wrong line of action. Thus, several wrong actions together result in mental agitation, suffering, and sorrow. The secret of prosperity and peace in the world lies in the choice of right action. Verse 8. They say the world is without reality, without foundation, without God. Born of mutual सोनपाल जी जय श्री कृष्णा। आप हाँ म्यूट कर लिया, चलो ठीक है। हर्षा जी बोलिए। They say the world is without reality, without foundation, without Lord, without born of mutual union caused by lust. What else? The Asurika demonic declare that this world has no reality, no satya, no foundation, no pratisthana, no Lord, no Ishvara. They consider the universe a product of mutual union arising out of lust. Satya reality is that which exists in all periods of time, past,
present, and future. What exists in the present and not in the past or future is false. The world does not stand the test of reality. The world of the waking state exists at present, but disappears in dream and deep sleep. This world, therefore, is transient, ephemeral, false, an unreal projection upon the reality, Brahma. Now, ninth, holding this view, the ruined souls of small intellect, of fierce deeds, come forth as enemies for the destruction of the world. The demonic have a poor intellect. They consider the world as a product of lust and mutual union, cannot conceive the transcendental reality underlying this terrestrial world. Holding such an erroneous view, they turn destructive. They ruin themselves and the world around. When a person's philosophy runs like this, he causes destruction to himself and society. Like a drunken driver on the road causes destruction to himself and others as well. The development of the intellect, therefore, is of utmost importance in life. We must educate ourselves on the fundamental values of life. Gradually, we have to rise up to the recognition of the supreme reality. Reality alone exists and not this phenomenal world projected upon it. Realizing the ultimate, you bring about absolute peace and bliss to yourself and on the world. ये हो गया, 9th तक हुआ और पढ़ना है 9th तक हो गया. चलो ठीक है, बस मेरे ख्याल से रहने देते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं. इसको ये बिम्मी को ही बोलते हैं. हाँ जी बिम्मी जी, आप करना चाहेंगी एक्सप्लेन? हाँ जी. नहीं मतलब अलग अलग तो क्या कहूँ, इसमें मुझे पूरा जो ये है कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, एक तो वही है कि उसके अंदर अहंकार इतना ज्यादा है, मतलब मैं का भाव इतना है कि वो अपने आगे. सोनपाल जी को बता देते हैं जरा. सोनपाल जी, ये भगवत गीता का 16 चैप्टर का 7th श्लोक से स्टार्ट हुआ है आज जी. हाँ जी. तो मैं का भाव बहुत ज्यादा है, लालच है, और यही मतलब उसको एक जैसे क्रिएटर जो देखता है कि दो चीजों का मिलन का, उसमें कुछ क्रिएट करने का, उसका एटीट्यूड ही डिस्ट्रक्शन की तरफ ही है. मतलब उसका माइंडसेट ही पूरा इतना डिस्ट्रक्टिव है कि वो हर चीज में नेगेटिविटी देखता है और अपने आप को हर किसी से सुपीरियर देखता है. वो मूवी है ना एनिमल, मुझे तो ये पूरा पढ़ के ना वो एनिमल वाला याद आ रहा था कि पूरा वैसे कि मतलब वही दम मद से युक्त मनुष्य, मतलब बेहोशी में ही सारा काम किया जा रहा है और हर जगह डिस्ट्रक्शन. और उससे एक और मुझे याद है, कल मैं उसका सुन रही थी कि लकी बिस्ट है स्पाई का, तो धुरंधर पिक्चर का उसका उससे वो व्यू ले रहे थे. तो उससे पूछा कि जब आप मारते हो इस तरह से, आपको कोई टारगेट दिया जाता है, तो मैं ये फर्क बता रही हूँ, ये आसक्ति वाला और कहते हैं वही नॉन आसक्ति वाला मनुष्य के बीच में. तो उसने कहा, सॉरी आसक्ति कह रही हूँ, आसुरी और नॉन आसुरी वाला. तो उससे पूछा कि आप जब मारते हो इस तरह से, आपको कोई टारगेट दिया जाता है, तो आपके मन में कुछ नहीं होता कि आपने किसी को मार दिया और उससे से ऐसे कर दिया? तो उसने कहा कि नहीं होता. कहते हैं अब आप ये सोचो कि आप किसी ऐसे को मार रहे हो, और उसने वो एक बताया उसका, जब ये मणिपुर में इंसिडेंट हुआ था, ये सब सारा जो काफी जो कमोशन था वहां पर. कहते एक व्यक्ति ने एक 3 महीने के बच्चे को उठा के और उसको उसकी मतलब टांगों के बीच में वहां चाकू मारा, तब भी उसको वो नहीं हुआ. उसकी आंखें चाकू से बाहर निकाल दी और बहुत जगह उसके शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे गोद के 3 महीने का बच्चा को मारा. कहते अब ऐसे व्यक्ति को आप मारते हुए आपको कहीं पर भी वो आएगी, मतलब कुछ भी आपको ग्लानि या दया आएगी. तो एक वो है कि वही ये आसुरी प्रवृत्ति वाला वो व्यक्ति जो इस तरह से, जिसने उस बच्चे के साथ ऐसे किया.
और ये दूसरी है, ये भी मार रहा है, ये भी मार रहा है, पर इसका मारने का जो मन से ही वो जो थिंकिंग है, मतलब कहीं पर भी नहीं, ये अन्याय को खत्म करने के उसमें मार रहा है। तो ये फर्क जो मुझे तभी यहाँ पर जब कृष्ण भी जब बता रहे हैं अर्जुन को, ये जो डिफरेंस बता रहे हैं आसुरी वाला और जो दैवी प्रवृत्ति वाला, उसमें वो ये है कि ये फर्क है, यदि तू इनको मारता भी है तो मारने में कोई तेरा, तू तब भी दैवी प्रवृत्ति वाला ही है और वो आसुरी वाले। हाँ बस ये मुझे एक्चुअली आप वहां पर अपने मतलब की कर रहे हो ना, वहां पर सारा आपका अपना खेल है। जहां पर आप आसुरी प्रवृत्ति में हो, आप सारा अपना खेल आपका, आप मैं के इतने में उसमें हो कि आप हर चीज आप उसके उस मैं के उसके अंदर कर रहे हो, कुछ मिला फिर और इतना वो कहते हैं फिर किसी को अपने आगे समझना ही नहीं, तो उसमें वो आप कहते हैं एक बुरे काम से दूसरे बुरे काम में उसमें फंसे जा रहे हो जाएगा। वो वहां पर दूसरा Actually, जो वो होता है ना, जैसे ये आसुरी और दैविक दोनों ही जो वृत्तियां हैं ना, प्रवृत्तियां या वृत्तियां जो भी हैं दोनों सोते वाली ही कैटेगरीज। अर्जुन को जो उठाया जा रहा है वो नज़दीक इसलिए कि उस दोनों सो रहे हैं ना, एक नींद में जाकर जो कोई अच्छे काम कर रहा है, एक नींद में जाकर जो है कोई खराब कर रहा है काम, लेकिन दोनों ही सोने वाली कैटेगरी में आया जाएगा, जो स्वयं को भूले बैठे हैं। अब अर्जुन को जो जगाया जा रहा है, अर्जुन को जगाना इसलिए आसान है, आसान तो खैर क्या है उसको भी, क्योंकि मतलब आसुरी वह नहीं है जो राक्षस टाइप के से जो लोग हमें दिखते हैं ना, वो वही नहीं है जो दो बटके देखता है अपने आप को दूसरे से अलग देखता है, वो आसुरी प्रवृत्ति कहलाता है। बीच में डिवाइडिंग लाइन जो आ जाती है, डिवाइड होकर जब मनुष्य की जो दृष्टि होती है देखने की, तो वो होती है। और डिवाइड लाइन क्या होती है, एक प्रकृति एक पुरुष है। अब जो पुरुष है पुरुष भी प्रकृति के साथ में जुड़ा पड़ा है। जो चेतना को पुरुष कहा जाता है, और प्रकृति को जो सारा जो मटेरियल वाली जो बॉडी माइंड ये सब जो खेल जो चलता है वो उस तरीके से कहा जाता है। परम पुरुष इन दोनों से भिन्न वाली अवस्था होती है। जो पुरुष होता है, पुरुष को ही परम पुरुष में जाके कन्वर्ट होना पड़ता है। तो वो जो परम पुरुष वाली जो स्थिति आएगी, तो वो स्थिति है कृष्ण की। अब जो उससे पहले की जो कैटेगरी है, वो दोनों में थोड़ा सा मतलब अटैचमेंट दोनों में ही है। अब उसमें एक दैविक वाली ये कह दिया जाए कि एक ने तो प्रायोरिटी अपनी बॉडी को दे ली कि दूसरे सारे मर जाएं चाहे जी जाएं, जो मर्जी हो जाए उनका, लेकिन मैं हो गया बस। और दूसरा वाला कह रहा है तू हो जा और मैं जो है अपने आप के प्राण भी त्याग दूं तो कुछ मैटर नहीं है। आएंगे दोनों एक ही उसमें, लेकिन जो दूसरे के लिए अपने आप को जो कर रहा है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये शरीर किसी की जायदाद नहीं है, ये भी प्रकृति की दिया हुआ उपहार है, तो इसको भी हम नहीं कर सकते। तो जो मनुष्य अपने आप को जो करके करता है वह भी दैविक में तो आता है, लेकिन दोनों ही सोते हुए में आते हैं। तो अपनी बॉडी को दूसरे की बॉडी को एक जैसा ही मानना, तब आप उसमें जागृत वाली कैटेगरी में फिर तब आएंगे। तो ये अवस्था होती है। और ये प्रवृत्ति और ये तो मतलब इस तरीके की होती है जो जिसको सिर्फ अपना ही अपना दिखता है खाली, तो उसके तो मतलब चाहे अपने ही वाइफ बच्चे कुछ भी उनको भी कुछ हो जाएगा तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो वाली कैटेगरी तो बिल्कुल ही मैं वाली हो जाती है कि अपनी ही बॉडी के साथ में इतना ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन उसने कर लिया। आइडेंटिफिकेशन तो दूसरे वाले ने भी करा हुआ है, तो दोनों ही सोने वाली कैटेगरी हैं बेसिकली। तो अब इसको कोई और भी एक बार अनामिका से पूछते हैं। हाँ जी। नहीं बोलती, दोनों ही सोने वाली हैं, दोनों ही सोने वाली हैं, पर फिर संसार में तो इस तरह से ये दो तो है ही, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो शुरू से एग्जिस्ट होता ही आया है। तो तीसरा यदि मतलब आप यदि तीसरे का आप जो कोई एग्जाम्पल दो, मतलब जैसे जो अभी के लोगों में कोई देवी और कोई आसुरी और फिर कोई तीसरा, दोनों इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, उसमें एक परम पुरुष होना जरूरी है,
वो जो एक ओशो की मैंने एक बार बहुत पहले एक भेजी थी, उसमें ये था कि रावण और उसमें जैसे हम जब रावण को अप्रिशिएट करने लगते हैं तो हम राम को बुरा बताने लग जाते हैं। अब जब राम को बताते हैं अच्छा तो रावण को बहुत बुरा बताने लग जाते हैं। तो ये जो दोनों नहीं होती, एक चेतना जो चैतन्य जो अवस्था है उस पे घूमना चाहिए बिंदु। अब उस पे घूमने की बजाय ये जो आसुरिक वाले हैं वो भी इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं और दैविक वाले भी कर रहे हैं इम्बैलेंस क्रिएट, क्योंकि अच्छे से तो संसार नहीं चलता ना। सही कर्म से संसार चलता है ठीक से, जो बैलेंस में आता है ना संसार, तो बैलेंस बनाए बिना नहीं चलेगी। केंद्र की जो धुरी है वो बिल्कुल उस पे होनी चाहिए कि एक आत्मा वाली जो बिंदु होती है ना, जो नॉन अटैच वाला बिंदु है, वहाँ से जो जब धुरी घूमती है ना चारों तरफ के उसकी, तो तब वो होता है। अब एक तरफ तो कह रहा है अच्छे वाला, वो जो समुद्र मंथन वाली जो अवस्था वो आती है, वो कैसे आती है? एक तरफ देवता खड़े हो गए, एक तरफ जो है असुर खड़े हो गए, बीच का वो बैलेंस बनाना पड़ा ना मत्स्य अवतार लेके भगवान को। वो मतलब अवतार क्या लेके बनाना पड़ा, मतलब हमें खुद ही बनना पड़ता है। तो वो अवस्था जो होती है हमारी जागृत वाली, जागृत अवस्था के बिना हम इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, और इम्बैलेंस क्रिएट करना ही पाप है। चाहे वो तुम देव वाले में चले जाओ, चाहे वो उसमें चले जाओ, असुर में चले जाओ। अब जैसे अब अर्जुन यदि नहीं करता ये कर्म में, जब ये नहीं करता तो ये भी तो इम्बैलेंस क्रिएट कर देता ना। सब कुछ सारा कुछ सामर्थ्य होकर भी ये जो असुर को भी, असुर बनाता कौन है? उसको हम ही लोग तो बनाते हैं असुर को। हम उससे कुछ डरे बैठे रहते हैं। अरे इंद्रियां हाथ पैर सब कुछ तुम्हारे को दिए हैं, तो तुम उसको इतना बलवान होने ही क्यों दे रहे हो? तो वो इतना बलवान जो होने दिया, तो वो हमने अच्छा करके वालों ने ही तो दिया होने उनको। हाँ जी बिम्बी जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ, अब मुझे समझ आ गया कि अर्जुन जब वो कृष्ण भी शुरू से उसको कह रहे हैं कि तू तो है ही देवी प्रवृत्ति वाला, तो उसको वो देवी प्रवृत्ति मतलब तू अच्छा है ही, मन से तू हमेशा अच्छा ही है। अब तू इससे भी राइज अबव दिस कि अच्छा, कि मैं मतलब वो अर्जुन इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि वो अच्छा है और उसको अच्छा होते हुए वो लग रहा है कि मैं कैसे मारूं, कि मारना उसको बुरा लग रहा है। पर कृष्ण उसे कह रहे हैं कि अब इस तू देवी प्रवृत्ति से ऊपर उठ और ये जान कि भाई यहाँ पर तेरा मानना सही है, उचित है। वो जैसे वही जो वो लकी बिश जो स्पाई है, वो ये कह रहा है कि हमें वहां मारते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरा धर्म है मुझे उसको मारना। हाँ, तो क्योंकि ये पता क्या हो जाता है, जैसे ये हुआ ना कि जैसे कि कोई अति करता चला जा रहा है आपके साथ। पहले तो आपको जब तक उसकी अति पता नहीं चल रही, या तो एक ही उसमें पता चल जानी चाहिए, तो यानी कि आपकी दृष्टि में अभी क्लैरिटी नहीं है, दृष्टि में या सोच में या इंटेलेक्ट में क्लैरिटी कम है। जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी वो उसका तो फन बढ़ता चला गया ना, सामने वाले का बढ़ता चला गया। अब वो जो जितना जो बढ़ा वो आपके साथ में, तो वो आपको फिर जैसे थोड़ा सा था तो आप तभी कर सकते थे, लेकिन वो आपका भी मैच्योरिटी लेवल उतना था नहीं। तो जब तक हम परिपक्व वाली स्टेज पे जाते हैं तो उतनी देर तक वो नाक इतना फन फैला के बैठ चुका होता है। मतलब कोई भी सिचुएशन कह दो, पूरे वर्ल्ड की कह दो, वैसे कह दो, कंट्री की कह दो, आपस में इंडिविजुअल इंसानों की कह दो, किसी भी तरीके की कह दो, तो कोई भी कहता है ना, कोई सामने हमारे साथ में हमारे को अत्याचार ही करता चला जा रहा है। वो अत्याचार नहीं करता चला जा रहा है, तू नेचर तुम्हें सिखाना चाह रही है। हाँ, तुम नहीं होने भी दे रहे हो। हाँ, तो नेचर सिखाना चाहे, तुम इतने बुद्धू बन के बैठे हुए हो, तो बुद्धूपना तुम्हारा कब तक चलेगा? बुद्धू से इंडिया पाकिस्तान का भी तो वैसे वही देखो ना, हम कब तक उनके ही वो करते रहे कि मतलब वो हमारे ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, जो भी करे, और हम एकदम फुद्दुओं की तरह बार बार अमेरिका की तरफ ही भागते रहे, उनसे हेल्प मांग रहे हैं। अब हम हुए कि हमने अपने आप को सक्षम बनाया। तो भारत तो हमेशा वही देवी प्रवृत्ति वाला रहा, और यहाँ पर हमारा नेबर बैठा हुआ है आसुर प्रवृत्ति वाला। तो अब ये है कि हम उससे उठे हैं। और अभी तो ये वाला नहीं होएगा काम, अभी और भी होने वाला है काम। पता है क्या काम होने वाला है? ये जो बीच की जो बाउंड्री जो कितनी जो गहरी करी जा रही है ना, इसको हिंदू मुस्लिम कर करके जो करी जा रही है, जो मेन जो करी जा रही है, इतनी वो क्या होता है, जब भी हमको किसी भी चीज के लिए प्रताड़ित किया जाता है ना, जैसे मतलब हर जगह कुचला जाता है जैसे, तो अंदर में एक रोष का बीज पैदा करते हैं हम, अंदर में हमारे होता ही होता है। वो धीरे धीरे जो अग्नि है वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी, वो उसको इस तरीके से नहीं ट्रीट करा जाता
कि ये ऐसे करके हर उसमें, हर एक कैटेगरी में, हिंदू में, मुस्लिम में, सब में सारे नहीं बुरा होता, सारे अच्छे नहीं होते, सारे बुरे नहीं होते। कहीं पर भी कोई खूंखार वाले वैसे वाले भी हिंदुओं में भी बतेरे होते हैं और उसमें भी होते हैं। हर उसमें पर्टिकुलर किसी चीज़ को वैसा कह कर एक उसको अलग से करके बोलना ही एक जो बिल्कुल सुप्रीम लेवल पर जो तुम बैठे हुए हो, वहां पर बैठकर यदि तुम बोल रहे हो तो वो चीज का वो गलत है ना। वो तो चीज उसको तो नहीं बनता ना। तुम तो माँ बाप हो ना सबके। तुम तो नहीं, वो तो आई परमात्मा हो। अग्री कि ये जो आरएसएस है या ये कौन है मोदी जी, ये एक बारी कह दे कि भैया हिंदू मुस्लिम हमारे दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारा पाकिस्तान है, दुश्मन हमारा वो देश है, तो इससे राइज अबाउट। तो लोगों ने यहाँ पर तो वो वही ना कि उसको ले लिया है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ले ली है अब देश जैसे में। अब चलो अपने उस पे लेवल पे लिया हो अब, कि जैसे कोई भी जो चीज अपने साथ में जो घटती है, अब कोई जैसे अब उस दिन भी आप बात कर रही थी कि ये जो जैसे कोई वीक है तो वीक को क्यों नहीं वो करा जाए। वीक किस लिए है, उसके क्यों हाथ पैर कहीं पर भी जो टिके हुए हैं। मतलब बात ये है कहने की कि वीक क्यों कहा जा रहा है। बुद्धि नहीं है, क्या नहीं है किसी के पास भी। तो वो उस चीज में हर इंसान 1 to 1 करके क्यों नहीं खेलता। हर वक्त आप अपने आप को कहीं सुप्रीम दिखाना, कहीं पर बिल्कुल ऐसा नीचे दिखाना क्यों। अपना सेंटर पे रहो। किसको किसकी जरूरत पड़ी है। तो वो सेंटर पे जब तक आप खुद स्वयं पे आओगे नहीं, बिल्कुल हम आत्मा हैं और आत्मा जो है अनंत आत्मा है, और सारे जो टोटल उसका जो कहते हैं हमारे अंदर जो प्रकाश है वही प्रकाश जो है सूर्य में, चंद्रमा में, सब में वही प्रकाश है। तो हम इतने सुप्रीम किससे आए हुए हैं और हम सुप्रीम वाली अवस्था में हम रह सकते हैं, फिर हम अपने आप को ऐसा गिरा पटका क्यों दिखाते हैं। तो वह चीज़ है ना। तो वो वाली अवस्था में जब रहेंगे तो सब में वही है, सब में वही है। तो सब में वही है तो उसका जो मन के साथ में वो कितना अटैच है, वो संपत्ति जो उठाता है तो वो मन के साथ में उसकी कंडीशनिंग हुई है ना, कि वो मटेरियल समझे बैठा है अपने आप को। तो वो मटेरियल सिर्फ मन को ही वो करा जाता है। अब जैसे ही होती है ना, जैसे प्रकृति में कोई तूफान आया, आंधी आया, कोई पेड़ पे से सपोज कीजिए कोई पेड़ गिर गया, नीचे बिल्कुल कोमल वाले घास के तिनके वो थे, वो भी दब गए। तो ऐसे प्रकृति का खेल चल रहा है सारा। तो उसमें कोई दया और वो सब चीज़ें तो नहीं चलती। लेकिन जहाँ पर चेतना होती है, जहाँ पर चैतन्य होता है, तो चैतन्य का क्या गुण होता है कि वो देख पाता है ना, देख पाता है कि किसी को हर्ट मैं कर रहा हूँ, किसी को कुछ कर रहा हूँ, तो वो चैतन्य की निशानी है वो चीज़ की। तो चैतन्य तुम होकर पैदा और तुम मटेरियल की तरह से तुम जी रहे हो जिंदगी, तो कहाँ की अकल है। तो ये जो गीता जो बताती है ना, तो जो ज़्यादा जो खराबी बर्बादी जो लोग करी है ना, वो बुरे लोगों ने नहीं करी है। एक तो जो अच्छे जो लोग हैं ना, अच्छे लोगों ने जो उसको था उसको चलने दिया। उसको अच्छाई के जो एक मुखौटा था ना, वो पहने के चक्कर में बुरा को चलने दिया। क्यों नहीं उसमें जो है उससे डबल पावर जो है आकर क्यों नहीं खड़े होते सामने। परेशानी है ना। बुरे क्या होता है, बुरे तो कुछ होती है कैटेगरी। सारे जो होते हैं ज्यादातर तो छुपे बैठे रहते हैं ना, अपने जहां पर एक्शन करना चाहिए करते नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह जी ने चुप रह के ज्यादा नुकसान कर दिया। व्यवहार जगत में ना व्यवहार ही व्यवहार करता रह जाता है मनुष्य। उसको सही उसमें करना आता ही नहीं है। यदि वो सही समय पर सही चीज बोले, सही एक्शन करे, तो किसी को आना ही ना पड़े ना। किसी के भी बीच में किस लिए हेल्प चाहिए किसी की भी। इतनी इंडिपेंडेंट बनाती है गीता। और गीता का कुछ नहीं पता, सारे श्लोक रट के बैठ जाएंगे, सब श्लोक रट के बैठ जाएंगे, मीनिंग पता नहीं होगा अंदर तक का, ना अंदर तक भी की चीज पता होगी। हरकतें सारी वैसी करनी। हिंदुओं का धर्म है, हिंदू करते फिरते हैं, आज तक गीता नहीं उठा के देखी होगी। हाँ, ऐसा वाला हाल तो चलता रहता है। कुछ नहीं है ना, सब अंधाधुन हिसाब किताब चल रहा है, कुछ नहीं कर। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर समझाया। बहुत ही पता नहीं, मतलब मेरे तो यही दृष्टि करती है, क्योंकि हर इंसान को दूसरे मतलब ऐसे हैंड टू माउथ होकर क्यों बैठना है। सब कुछ अपने पास में पूरा जो है विराट हमारे अंदर बैठा है खुद, और विराट की शक्ति लेकर खुद अपने आप एक्ट करना चाहिए हर इंसान को। गीता इतना सुंदर शास्त्र मिला हुआ है, इसको कभी पढ़ने की वो नहीं करते।
देखना नहीं खोल के, करना नहीं, इसको समझने की कोशिश नहीं करना। संस्कृत अभी उस पे ये यूट्यूब पे उसमें डाल देती हूँ मैं, तो उसमें ना किसी का आया, तो उसमें मैसेज था कि गीता गीता अनामिका के लिए था कह रहे पहले संस्कृत में श्लोक पढ़ना सीख लें मैंने कहा कि यदि दवाई खाओगे तो बीमारी दूर नहीं होती क्या? मैंने उस पर कमेंट लिखी, फिर पता है मैंने ये वाली कमेंट लिखी उस पर दवाई खाओगे तो मैंने क्या कहा दवाई, यदि मेडिसिन का नाम तुम्हें पता ना हो और तुम मेडिसिन खाओगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी क्या? सही है। मैं तो मतलब मेरे में नहीं है ये एक्सक्यूज देने की पावर नहीं है, मैं एक्सक्यूज नहीं देती की, क्योंकि हाँ, जरूरी तो है कि संस्कृत पढ़ने से नहीं, वो चलो ठीक है कि जब संस्कृत में लिखा गया तो वो बिल्कुल वो कहते हैं वो भाव आया, मतलब जो राइटर का बिल्कुल वो शब्दों का जो चयन उसने किया संस्कृत में, वो एक मतलब उसका सही तरीके से इंटरप्रेट किया जाए तो वहां तक ठीक है, बट अदरवाइज नहीं आती तो ये थोड़ा कि हम उसका मतलब नहीं समझ सकते। उसका बोध नहीं पता होगा, हमें पता नहीं होगा कि मेडिसिन का मुझे मेरे को नाम भी पता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि इसमें क्या गुण है मेडिसिन में, तो मेरे को क्या फायदा होगा उसका? मेरे को क्या फायदा होगा? मैं मेडिसिन वो ले सकती हूँ यदि मुझे उसके गुण नहीं पता हो। मेरे को नाम भी खूब अच्छे से पढ़ना आ रहा है, बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन मैं कर लेती हूँ उसकी, सब कुछ कर लेती हूँ। ऐसा ये दिखावटी ना वो हो गया, ये पैकिंग का पैक उसका हो गया वर्ल्ड ना सारा दिखावटी जगत। अब किसी ने वो लगाया हुआ था, क्या कहते हैं ये कि जूठन खानी चाहिए हमें संतों की। अरे संतों की जूठन खानी चाहिए, अरे संतों की जूठन मतलब ये नहीं सोया जो बॉडी पे जो काम जो करा जाता है, मतलब बॉडी पे जो बॉडी के जो गुणधर्म है वो तो तुम्हारे बैक्टीरिया लेंगे ना, क्या नहीं लेंगे? जूठन क्या चीज होती है कि जो तुमने अनुभूति की परमात्मा की, और वो वाले जो वचन है वो वचन तुम जूठन खा रहे हो। अभी जूठन मतलब दूसरे के वचन है, वो अभी तुम ले रहे हो उसको, तो वो वाली जूठन की बात हो रही है, उसमें फिजिकल जूठन की बात थोड़ी ना हो रही है। कोई अंडरस्टैंड करने की बात कर रही हूँ मैं कि ये कैसे अंडरस्टैंड करा जाता है। अब उसमें दूसरे वाले खाने को बता रहे हैं, बताओ। अरे क्यों खाओगे तुम? मतलब किसी का भी जूठा किस लिए खाना है? उससे ये जो आपने संस्कृत का बोला और जो आपने ये जूठन का बोला, वो जो 17 वाला है उसके अंदर वही चीज है कि मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। तो वही है, यही कर रहा है सारा संसार। हाँ, दिखावा ये चीज चल रही है, ये चीज चल रही है। बताओ अब जूठन उसकी वो खाएंगे, मतलब उतरावा खाना उसको। अरे किसी के भी बैक्टीरिया हैं किसी के भी शरीर में, फिजिकल बॉडी पे तो फिजिकल वाली नेचर के सारी चीजें अप्लाई होती है ना उस पर, वो कैसे अप्लाई हो जाएगी चीज? सारा मन से जो निकले हुए वचन है, अब आपके वचन है, आपके वचन जब हमारे अपने वचन हो जाएंगे तो हमारे अपने हो जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं है तो मैं आपकी जूठन खा रही हूँ। जूठन मतलब ये है कि आपके चीज को मैं ले रही हूँ आपकी उसको। और वैसे भी ये तो मतलब और फिर उसमें जो कुछ बच जाता है, जैसे जो मेरे अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ मुझे, तो फिर मैं वो वाले ही शब्द लेकर मैं किसी और के पास जाती हूँ कि भाई इस तरीके से बोला गया था, तो अब इसको मेरे को समझाओ। तो जब तक वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती, तो इस तरीके से ये जो है स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोली जाती है। अब इसको समझ के बैठ जाते हैं स्थूल तौर पर, फिजिकल तौर पर समझ के बैठ जाते हैं सब। अब उससे थोड़ी ना कोई लेना देना है। अब कृष्ण जो बोल रहे हैं ये तभी तो किसी के वो पल्ले पड़ती नहीं, ये वाली चीज़ें जो कृष्ण बोल रहे हैं उसमें जो है इसमें कोई स्नेह थी पहले, वो जो विनोद जी की सिस्टर, तो वो बोल रही कि उसमें भी बताया है वैसा तामसिक खाना और वो खाना। मैंने कहा तामसिक वामसिक खाने से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ना होता बाहर में, तुम प्याज खाओ लहसुन खाओ कुछ भी मैटर नहीं करती है चीज़ें। तामसिक खाना मतलब ये है कि बाहर के जो इस तरीके के जो विचार और वैसे वाले होते हैं जो तुम्हारे को जो है मतलब तुम्हारा मन को भारी करे, जो मन के ऊपर जो भारी करे, मन को जो है 24 घंटे तुम्हारे को किसी ना किसी क्रिया में लगाए रखे, वो राजसिक हो गया। जो मन को जो हैवी कर दे थॉट वो तामसिक हो गए, और जो मन को जो है हल्का कर दे वो सात्विक थॉट हो गए। तो सारा कुछ जो गीता जो टोटल जो चलती है वो तो चलती तो इस पे है ना।
मन के ऊपर चलती है ये तो चीज। मन से, मन को ही तो हल्का करा था कि तब वो हथियार उठाने लायक हुआ उसके। अब उस समय कोई उसको भोजन, किसी दूसरी चीज का भोजन थोड़ी ना कराया था भगवान ने उसको। तो ये समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे आजकल का वर्ल्ड जो है सारा स्थूल चीज़ के हिसाब से समझता है। तो इसीलिए मुझे तो समझ में ही नहीं आती, किसी की भी बातें ही नहीं मुझे समझ में, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ती बिल्कुल ही। मेरे को पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं, है ही नहीं वो तो। कुछ भी तुम शरीर में कुछ भी खा लो, तुम्हारे अंदर पानी भी लगेगा। पानी भी विटामिन बनाता है यदि हमारा माइंड बिल्कुल अच्छा है, हेल्दी माइंड है तो पानी भी बनाता है। सारा टाइम वो फिजिकल तौर पे लग जाएंगे कि ये पियो, ये खाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। और उसके बाद में भी सबसे ज़्यादा हेल्थ ख़राब रहती है, 100% हेल्थ ख़राब रहती है ऐसे लोगों की जो ज़्यादा ही घुसे रहते हैं इन चीज़ों में। कुछ भी नहीं होता उससे। एक्टिवनेस तो माइंड से आती है, उससे थोड़ी ना आती है। माइंड जितना हल्का होता है उतनी तुम्हारी बॉडी एक्ट करती है बढ़िया से। चलो मेरा तो लेक्चर बहुत हो गया। नामिका आप बोलो। हाँ नहीं, मुझे तो अब कुछ नहीं बोलना, मेजर आपने कर दिया अच्छे से नहीं, एक्सप्लेन। फिर भी थोड़ा बोलो। वही है कि मतलब वही है कि संसार ही लेके बैठे हुए हैं और उसका ही चल रहा है। मतलब अच्छे लोग भी है तो वो भी अच्छा चाहिए, तो उसमें संसार है उनके साथ में। अब जैसे जब जैसे मतलब वो तो गीता में जो ये युद्ध हुआ था महाभारत का, उसमें ही समझ में आता है ना कि द्रोणाचार्य थे, ये सब थे, ये मतलब बस बैठे हुए थे, वो अपने मन का कर रहा है, तुमको दिख रहा है गलत हो रहा है वहां पर, अगर तुम्हारे पास शक्ति भी फिर भी तुम यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसे के लिए तो फिर अर्जुन का भी हथियार उठाना बनता ही था ना। वो कृष्ण ने उसको वहीं पे लाके खड़ा किया। हाँ तो ये जो सत्व वाले भी जो लोग होते हैं वो भी सोने वाली ही कैटेगरी में ही आ जाते हैं ना सारे। उनको नॉलेज होते हुए भी यदि तुम्हारे पास में, वो कहते हैं ना हीरा है, तुम उसका प्रयोग ही नहीं करना जान रहे हो ना। हीरा मतलब तुम खुद चैतन्य वाली जो स्थिति है वो तुम्हारी हीरे की है, हीरे की है। हीरा तो क्या है, कैसे भी काट पीट देता है, ख़त्म कर देता है सब चीज़ को। सिचुएशन को पूरी तरह से ख़त्म करने की, डिसॉल्व करने की सामर्थ्य होती है चेतना में। किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी आ जाए तो उसको पता होता है कहाँ तो मुझे सरेंडर करना है और कहाँ पर मेरे को खड़े रहना है। मेरे को पूरी इवैल्यूएशन होती है हर चीज़ की। कहाँ से वाणी स्टार्ट हुई वहीं पर ही से स्टार्ट पता चल जाता है कि कौन सा किस उसमें कौन सी सेंस में कोई क्या चीज़ बोली जा रही है। तो वही है कि अपना जितना लेवल हमारा ऊपर तो होता चला जाता है तो उतनी हम सिचुएशंस को जो है हैंडल आराम से कर पाते हैं। जो उथल पुथल और गिर पिट जाते हैं तो वो छोटे छोटे वैसे ही रह जाते हैं ना, पेड़ पौधों की तरह से ही रह जाते हैं बस। जो विशाल हो जाता है, नहीं तो फिर जो अच्छे भी होते हैं अगर उनके हाथ से कुछ ऐसे मतलब कुछ उन्हें कर्ज भी दिया तो वो ग्लानि भाव में इतने परेशान हो जाते हैं कि तो भी वो चैन से नहीं बैठ पाते। हाँ वो तो अच्छे वाले का वो तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए एक समभाव रहना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर लगाई हुई होती पट्टी वो अच्छे की ना। वो लगाई हुई होती अंदर वो वो मतलब बैलेंस में रहना है। हाँ बाहर की वो एक्चुअली जो ये सारी उनका ही डर नहीं रह जाता ना हमें कि कोई क्या बोलता है नहीं बोलता, उस चीज़ की परवाह नहीं रह जाती तो इंसान भी फिर बेबाक एक्शन ले पाता है। यही है चीज़। गीता बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिखाती है ये होना। और जो यदि इस तरीके से जी ले ना तो वही इंसान जो है हर मोमेंट को प्रॉपर ढंग से जो है यूटिलाइज कर सकता है। अदरवाइज क्या होता है, आधी जिंदगी तो सीखने में चली जाती है और जब जब एक्शन करने का टाइम आता है तब तक जाने का टाइम आ जाता है। ये चीज चलती है। मोस्ट ऑफ लोग गीता उठाते ही तब है ना। हाँ मतलब जब मेन समय जा चुका हो गया होता है। और जबकि ये जितना जल्दी समझ में आ जाए तो ये जो मनुष्य रूपी जो मशीन है इसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अभी ये हो गया ना जैसे मशीन चलानी आती नहीं थी, मैनुअल था नहीं ढंग से, पढ़ा नहीं उसका, मैनुअल है एक तरीके से गीता। मैनुअल पढ़ लोगे तो सारी इंद्रियों को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है ढंग से तुम कर पाओगे यूटिलाइज। अभी तो क्या आधा टाइम तो राग द्वेष में जलन बलन फलाना ढिमकाना में चला गया पूरा। अब जो 25% की जो जिंदगी बची है उसको मतलब ये है कि फ्री ढंग से जी लें बस। चलो जब भी आ गई ठीक है। हाँ जी दीपा जी आप बोलिए। हाँ जी दीपा। नहीं दीपा नहीं, हर्षा जी आप बोलिए। बोलना चाहती हूँ हाँ जी। कि समय इतना अनमोल है
हाँ? और हमें ऐसे जो बोलते हैं ना, अनमोल है तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और है तेरी मंजिल, किस और कहाँ जा रहा है तू। तो ये जो है वो है ना, अभी ये हम लोग को एक एक पल के जैसे आप कदर करते हो ना। तो आज मेरी फ्रेंड के साथ मैं चल रही थी, तो उसने बोला कि अभी मुझे आजकल कुछ भी चीज देखना टीवी में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हम लोग का समय बहुत बारीकी चल रहा है और समय का कुछ भरोसा नहीं। तो 3-3 घंटा हम वो सीरियल्स देखते थे, वो सब अभी मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं लगता है। अभी मुझे पूरा अध्यात्म में जास्ती ध्यान जाता है। तो वही सही बात है कि पल पल में हम लोग काम करते हुए जो भी काम करते हैं उसमें भी मोना, मोना जरा म्यूट करो जरा। हाँ मोना म्यूट करो जरा। हाँ जी बोलिए हर्षित जी। हाँ, तो दर एक चीज में हम ईश्वर का याद करते हुए वो करें ना, तो बहुत ही अच्छा है। कि हम जैसे बोलते ना, शिवानी मम्मी बोलती थी मुझे ट्रैफिक कंट्रोल, 1-1 घंटे में उनका मोबाइल नहीं था, पर जो मेड थी ना उसको बोलती थी 1-1 घंटा में तो खाली ओम शांति ओम का वो गाना बजा देना। तो वो मैं बोलती थी क्या है, तो बोलते ट्रैफिक कंट्रोल है, जो शिवानी इन लोग को सिखाते थे पहले। तो बोलते 1 घंटे में 1 पल भी जब वो बचता है तो हम रिमाइंडर रखते हैं अपने आप को। तो ऐसे हम लोग को कांस्टेंट रिमाइंडर अभी अपने आप को देना होगा कि क्या हम करने आए हैं, क्या कर रहे हैं और किस दिशा में हमारी जिंदगी जा रही है। बस ये सुजागी पूरी 24/7। और रामकृष्ण परमहंस का एक प्रेयर है, बंगाली में था कि देयर इज नो हॉलिडे फॉर द स्पिरिचुअल सीकर, he has to live on without 1 minute's pause, constantly flowing in the divine direction। तो यही है, ये ऐसे लहर में हमें चलना है। इसको चाहे आप जैसे हॉलीडे नहीं है, ये तो थोड़ा वैसी चीज हो गई, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जैसे हर 24 आवर्स का सेलिब्रेशन चल रहा है। और सेलिब्रेशन में आप सेलिब्रेशन को आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपके अटेंड करने में ही जो है अपने आप ऑटोमेटिकली एक्शंस अपने आप होते हैं। मतलब हर मोमेंट को अटेंड करना ही आपका सेलिब्रेशन है एक तरीके से। सेलिब्रेशन तो मोमेंट में चल ही रहा है, उसमें पार्टिसिपेट आप किस प्रकार से कर रहे हैं मैटर वो कर रही है चीज़। ये वाली बात समझ। एक बहुत ह्यूमरस इंसिडेंट था कि शर्विंदो जब उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया था, 12 साल वो बेड में थे ना, तो सुब्रमण्यम भारती और कई कई लोग आते थे, बड़े बड़े जो थे ना उनको मिलने का लिए। तो एक जन ने बोला कि मेरा क्या करना है, तो शर्विंदो ने हंसते हंसते बोला जस्ट स्माइल एंड बी हैप्पीली पार्टिसिपेटिंग इन द डिवाइन प्ले। और उन्होंने खुद अपना पाँव को बताया और हंसने लगे। तो यही तो चीज है ना कि हमें सीख, यही तो आप जो बता रहे वही है, सेलिब्रेशन है लाइफ। उसको सीरियसली जी कर नहीं रहना है, उसको हास्य से जीना है और उमंग से जीना है। परफेक्ट। हाँ जी जैस्मिन जी आप बोलिए। हाँ जी जैस्मिन जी अनम्यूट करके बोलिए। सॉरी मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ कोई कोई बात नहीं। मैंने नहीं, आज मेरा माइंड भी बहुत डिस्टर्ब्ड है। मेरा ना मन ही नहीं टिक रहा, ना दिमाग टिक रहा है। आपकी बातें भी सुन रही हूँ फिर भी मन नहीं टिक रहा है। पता नहीं, अपने आप थोड़ा परेशान सी हूँ। अच्छा ज्यादा नहीं, दिमाग पता नहीं दिमाग में ज्यादा भरा हाँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट बट आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। प्लीज थोड़ा आप लोग और बोलो, फिर थोड़ा सा मे बी आई फील लिटिल बेटर। हाँ मैंने कहा आज तो आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दी इसमें। हाँ, अब आप इसलिए नहीं सुनी कि मेरे को मेरे मन में और दिमाग में इतनी उथल पुथल चल रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा what I'm doing is right, what I'm doing is wrong. It's not me but around me. तो चलो आपसे ही बात करके शायद अच्छा लगे। अभी इन्होंने भेजा था, समझा नहीं पा रही कि जो मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, मगर फिर लगता है कि अगले वाले को समझ ही नहीं आ रहे मेरा करना कराना। फिर मुझे ये मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ एक्चुअली। ये ना करना वाला भी जो सिचुएशन जब तक रहती है ना, तो करने वाला ही ना हो ना भाव आपका। जैसे आप अपने आनंद से बस आप जो कुछ कर रही हैं करें, दूसरे वाले से नहीं, वो तो कर रही हो, मगर पता फिर भी इंसान हो ना, फिर आगे से
आगे का नहीं, कि देखिए आपका इंटरेस्ट है नहीं है वही करने आ में। गया ना एक्सपेक्टेशन। नहीं नहीं, आपको जिसमें जो अच्छा लगता सॉरी है। एवरीबॉडी, मैं ये तो पर्सनल टर्न पर ले गई। इफ यू वांट टू कैरी ऑन आई कैन जस्ट लिसन। ये जो है इसमें जो इन्होंने हर्षा जी ने भेजा था, गिव योर सेल्फ एंटायरली टू द डिवाइन एंड यू विल सी द एंड ऑफ ऑल योर ट्रबल्स। तो अब इसमें ये चलो इसको मैं पूछ रही थी, इसको बिम्मी जी जरा आप बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे डिवाइन का गिव योर सेल्फ फुली टू द डिवाइन का बस वही है कि जो आपके सामने स्थिति है आपने उसको 100% आपने उसको अटेंड कर दिया। उसके अलावा आपने अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी से सत्य पर आपने उसको एड्रेस कर दिया उस प्रॉब्लम को। उसके बियॉन्ड आपका उसके आगे आउटकम उसका क्या होगा उसके ऊपर आपका कोई वो नहीं है, मतलब कंट्रोल नहीं है, तो उस बारे में सोचना ही नहीं। तो आपके साथ जो आप हो रहा है, आप जो कर रहे हो, आप उसको एक अच्छी भावना के साथ कर रहे हो, बस वही आप कर सकते हो, उतना ही आपके हाथ में है। आगे उससे उसका क्या रिजल्ट होगा, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। हाँ, मतलब बीच में डिवाइन इज बेसिकली सरेंडर का मतलब वो नहीं होता कि आपने पहले से कि मैं तो कुछ करूँ नहीं वही करेगा। सरेंडर करे आप करके आप सरेंडर कर रहे हो, मतलब आपने किया, यू आर जस्ट एड्रेसिंग दैट प्रॉब्लम एंड यू आर डूइंग योर वर्क एंड देन मूविंग आउट ऑफ दैट। नहीं, इस सरेंडर का मतलब ये नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है कि मैंने पहले से ही जो है अच्छा हो बुरा हो वो नहीं, मैं बीच में नहीं आ रहा है इसमें। मैं मतलब मेरा अपना सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, तो वो आएगा ही नहीं जब मैंने सोचना ही नहीं कि आगे इसका पहले करना है। पहले भी हाँ, पहले वो करेंगे तो वो अपने आप ही वो डिवाइन के प्रति जो समर्पित होता है ना, वो पहले हो गया। तो वो जब हम पहले ही अपना इंटरेस्ट हमने अपना खत्म कर लिया तो प्रॉब्लम रही कहाँ? तो प्रॉब्लम कौन था? प्रॉब्लम था कौन? वो कह रहे हैं कि एंड ऑफ ऑल योर ट्रबल्स। तो ट्रबल किसकी थी फिर? हमने किसको एंड करा? आपने ट्रबल को ट्रबल की तरह देखा ही नहीं। आप उससे मतलब जो आया सामने आपने उसको बस निपटा दिया। जैसे अपने आप को एंड कर किसी दिया ना। अच्छी सिचुएशन को भी कर दिया, अच्छी सिचुएशन को भी वैसे ही अटेंड कर दिया और बुरी सिचुएशन को भी वैसे ही अटेंड कर दिया। मतलब कोई वो हाँ, वो पहले अपने आप को बीच में से हटा दिया ना। तो यानी कि तुम ही तो ट्रबल थे, अपने आप को हटा दिया बीच में से। नहीं, जैस्मिन उनके सिचुएशन में जो मतलब क्योंकि मुझे पता है कि क्या व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, तो वो है कि जो आप कर रहे हो, आप जितनी आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो है वो आप कर रहे हो, बट ये है भी कि इतना भी ओवरडोज नहीं करो कि दूसरा पैरालाइज हो जाए। ये भी है, आप उतने तक करो कि किसी दूसरे को भी सक्षम बनाने तक का करो। शायद मुझे यही चाहिए था विमी। मे बी आई नीडेड समबडी टू गिव मी क्लैरिटी कि मैं पागलों जैसे करती जा रही हूँ बट हल्की सी भी मे बी आई ऑल्सो एन ह्यूमन बीइंग वो एप्रिसिएशन को तो मारो गोली, बहुत दूर की बात है कि मतलब दूसरा रिसीव और रिसीव कर रहा है और उसको निगेट नहीं कर रहा है ना। जैसे आई डोंट नो, चलो आप ही बोलो। नहीं, आप बोलो। आप मतलब आप जितना बोलोगे आप उतना अपने उससे जो भरा हुआ है वो निकलेगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, अभी आप बोलो। नहीं, बस मैं तो यही कहूंगी कि मतलब आप जो कर रहे हो आप अपना पर वहां पर अभी जो आप कर रहे हो आप बहुत आसक्ति के साथ कर रहे हो। अब अटैचमेंट ज्यादा है, इमोशंस ज्यादा है। आपकी स्थिति वो अर्जुन वाली है जो अभी हम वही पढ़ रहे थे कि वो दैवी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आप उसमें वो कर रहे हो और कृष्ण कह रहा है कि आप उससे बाहर निकलो, दैवी प्रवृत्ति से भी बाहर निकलो, दैवी असुर से दोनों से बाहर निकलो। मतलब करो, ठीक है आप करो, बट डोंट ओवरडोज नहीं करो कि वो बंदा दूसरा बेहोशी हो जाए
और बेहोशी में ही जीना शुरू कर दे फिर। मैं तो ये कहूंगी कि करना ही क्यों है, कोई हैंडीकैप है सामने वाला कि किस लिए करना है, किसी का अपने आप में एंजॉय करो अपनी उसको। नहीं, द नीड ऑफ द आवर इज कि करना है, करना अच्छा। पड़ेगा और करना है और करना भी चाहती हूँ, बट इतना भी करके शायद मेरा वो ह्यूमन नहीं, बीइंग नहीं, वो वाला ना ये तो जो एक्सपेक्टेशन को खत्म कर दो, वो शायद एक्सपेक्टेशन से उठा रही है बहुत। नहीं आप अगले वाला सोचे तो सही यार, ये शी इज गोइंग ऑल आउट मोर देन द नीड और द थिंग। तो शायद मेरा अपना ही अंदर मन में बहुत उथल पुथल चल रहा है, तो आई थॉट आई शेयर विद ऑल यू पीपल। if you feel okay you can share, क्योंकि and further discuss, मतलब आपको शायद solution मिल जाएगा यहाँ पर। हाँ, एक्चुअली सरिता जी, माय डॉटर इज गोइंग थ्रू अ बैड मैरिज। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज। पता नहीं इफ इट्स द राइट प्लेटफॉर्म में बात करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आप लोगों को लगे कि हम तो कुछ और कर रहे हैं, ये कुछ और बोल रही हैं। नहीं, वो तो जैसे इसमें तो ऐसा है ना कि जैसे आपकी जो आवाज आएगी ना, जो उसमें होगी, तो जब क्लैरिटी नहीं होगी तो ये तो अंदर की बीमारियां हैं जो हमें लगी हुई हैं, तो उसी चीज को डिसॉल्व नहीं, शी इज गोइंग थ्रू अ बैड मैरिज, मैं उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, बट कभी कभी मुझे लगता है कि देखो, द डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, द प्राइस, द कॉस्ट ऑफ द वो 9-10 लाख रुपया वहां, अभी उसकी गाड़ी खराब, वो डीजल करके उसको लेके देना पड़ा, सब कुछ कर रही हूँ, बट मेरे को कभी कभी लगता है कि मुझे अभी भी आई एम फॉलिंग शॉर्ट। मतलब शायद उनको लगता है ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो करेगी। हाँ, और कर भी रही हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि ये वो कहते हैं, ये जैसे आपने ये जो गीता सेशन जो करना शुरू किया ना, वो कहते हैं ना, जैसे गधा मजदूरी करता है ना, तो हम ना मजदूरी करते रहते हैं, तो कहते हैं जब वो एक मजदूरी करता कोलू के बैल वाली जिंदगी होती है हमारी, तो हमने जिनके साथ में बंधे हुए हैं ना, हम उन्हीं के लिए करते जाते हैं। तो कहते हैं यदि इतनी मेहनत हमने यदि अपने रास्ते के लिए कर ली होती ना, जो आत्म तत्व का जो रास्ता होता है, उससे 1/4 भी मेहनत उतनी कर ली होती, तो हमारा ये जीवन पार हो चुका होता। नहीं, क्योंकि वो मेरी बच्ची है, तो मैं सोच रही हूँ ये तो मेरा बाउंडेड ड्यूटी है, मेरे को तो करना ही है। जो मैं नहीं करूंगी, शी विल हैव टू लिव इन दैट हेल्थ दैट शी वाज लिविंग। सबसे पहले तो आप ड्यूटी का मतलब समझ लो। ड्यूटी का मतलब स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता ये। ड्यूटी का मतलब होता है मन को आपको जो है शांत रखना और मन को आनंदित वाली अवस्था में हमेशा रखे रखना। मेरे मन में ना ऐसे उबड़ करके वो उबाले आ रहे हैं, जैसे पानी में उबलता है ना। कल रात से मैं इतनी परेशान हूँ, सो भी नहीं पाई। नहीं तो आप वो उसके फ्यूचर की इतनी ज्यादा आपको चिंता क्यों लग रही है? यदि उसको अपने खुद की फ्यूचर की चिंता हो रही तो वो खुद करती ना अपने आप। उसकी क्योंकि वो गलत में नहीं है, शी वाज लिविंग इन हेल। अब देखो, आई कैन नॉट सी माई चाइल्ड लिविंग इन हेल। कोई मार खाने के लिए तो नहीं पैदा होता, कोई गालियां खा के, मतलब उसके बच्चे के लिए भी इतनी प्रॉब्लम्स। सो वो उसके लिए तो नहीं, एज अ मदर तो मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, और मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट कभी कभी लगता है कि मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ, मे बी शी फील्स आई एम नॉट डूइंग इनफ। वो फील करने दो, वो तो उसकी अपनी फीलिंग है ना। ये तो इतना अभी ऐसे उसने कहा नहीं मुझे ऐसा, बट कभी कभी ना मैं कल जैसे कहने की जरूरत ही नहीं होती है, कहने की जरूरत नहीं होती, वो सारी हाव से पता चल जाती है किसी के भी। कल आई लॉस्ट, हाँ, मैं मे बी आई रिएक्टेड एंड मेरी आवाज और मेरा डायलेक्ट शायद ज्यादा था, वो मुझे ही परेशान कर रहा है। शायद उसको नहीं भी कर रहा होगा, मगर मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि मैंने ऐसे बात क्यों की, पैसा समझाने के लिए। नहीं तो आपने जो ठीक समझा होगा वो करा होगा, आप अपने उस पे क्यों नहीं रहते हो? आपके ना ये ज्यादा वाला मोह अटक रहा है उसमें। मोह, आई बीन टेलिंग हर कि मोह ज्यादा आ रहा है, और आप जो जैस्मिन सोचते हो ना कि बैक गोइंग थ्रू, हाँ, नहीं, मतलब व्हाट आई फील इज कि
शी इज फीलिंग अ लॉट कि शी इज गोइंग थ्रू हेल्थ. शी इज ऑफ कोर्स कि ठीक है जो कुछ हुआ, बट देन टेक इट कि मतलब इट्स ठीक है, दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं हुई तो कहते इट्स अ नॉर्मल, टेक डिवोर्स एज अ डिवोर्स. मतलब डोंट कि उस वे से नहीं लो, उल्टा वो लो कि ठीक है, इफ शी वॉज इन अ प्रॉब्लम, इट वॉजंट वर्किंग आउट गुड बिटवीन द टू ऑफ देम, डिवोर्स वॉज द ओनली सोल्यूशन. एंड इफ शी इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस, गो थ्रू दैट प्रोसेस हैप्पीली. उल्टा अच्छा है, वो जो गड़बड़ हो रही थी, आप उस गड़बड़ को सुधारना चाह रहे हो ना. नहीं, वो उससे तो कोशिश, वो तो भी कोशिश कर रही है. शायद द स्ट्रेन ऑफ द एकदम से मेरे पर सच अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑफ मनी केम, मे बी आई रिएक्टेड, मे बी आई डोंट नो. एंड रही बात स्टेइंग इन, कहते हैं सी मेंटली ऑफ कोर्स दैट थिंग ऑफ, पर जब जहां पर वो रहा ही नहीं दोनों के रिश्तों में, वो प्यार या जो भी जो एक वो रहा ही नहीं, एंड दे आर बोथ ऑफ देम आर कमिंग आउट ऑफ इट, देन लेट देम हैप्पीली कम आउट ऑफ इट कि चलो जी, नहीं तो नहीं, अब वो नहीं ना हैप्पीली आने दे रहा, वही वो केस पर केस डालता जा रहा है, बट वो हैप्पीली नहीं आने दे रहा. शी इज नॉट इन द रॉन्ग, आई नो. नहीं वो ठीक है, वो आप शी इज नॉट इन द रॉन्ग, वो शी इज रॉन्ग राइट का यहाँ पर है ही नहीं. इट इज जस्ट कि बोथ ऑफ देम आर नाउ नॉट वांटिंग टू स्टे, एंड उसकी लालच है, ही इज वांटिंग योर वेल्थ. मतलब वो उसकी अलग बात है, वो उस चक्कर में वो केस के ऊपर केस कर रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ financial burden on you. But जहां तक इसका जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है आपने, आप उसको, जो मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा उसको हैंडीकैप बनाए जा रहे हो, बहुत ज्यादा दे के आपको उसको सक्षम बनाना है टू फाइट दिस. मतलब यू आर देयर स्टैंडिंग लाइक कृष्ण विद हर, बट नॉट कि आप भी हथियार उठाए जा रहे हो बार बार. कृष्ण ने कहीं नहीं हथियार उठाए, आप क्या कर रहे हो, आप उठा रहे हो, आप उसको नहीं उठाने दे रहे. नहीं, वो तो ऐसे ही होता ना. ये तो बिल्कुल ठीक समझा रही हूँ बिम्मी जी. जैसे अब उसका बैगेज था, अर्जुन का बैगेज उन्होंने खुद थोड़ी ना उठा लिया. अरे दूसरा जो हेल में पड़ा है वो पड़ा रहा है, वो अपने आप ही तो हल्का हुआ. अर्जुन भी, उसको यही तो समझाया कि तू ये जो है किसके लिए तू शोक मना रहा है, किसके लिए. अब ये भी वही कर रही हैं. अब जो यदि उसकी डेस्टिनी में वो था, अब ये फाइट उसको करनी थी, उसमें आप सपोर्ट कर रही हो उसको, बस मैक्सिमम इतना ही आप कर सकती थी. अब इसको स्मार्टली इसको हैंडल करो बस. अब वो जो भी जिस तरीके से भी वो टॉर्चर कर रहा है, उसके टॉर्चर से किस तरीके से उसको डील करना है, उस तरफ में दिमाग लगाना पड़ेगा. अब उसके लिए पैसा रुपया लगेगा जो लगेगा ही. उससे तो आप नहीं कर सकते ना. यदि आपको पीस चाहिए अपनी बेटी के लिए और खुद के लिए भी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए तो उस चीज़ से आप अपना बैकवर्ड नहीं जा सकते ना. मतलब जो भी लॉयर्स की और इसकी सबकी जो फीस होती है वो तो देनी पड़ेगी. वो दे के जितना जल्दी से जल्दी वो कर भी रही हूँ. मे बी इट वाज, कई बार होता ना, बोझ पर बोझ एकदम से. कल मुझे लगा जैसे कि बस इवन आई वाज फीलिंग द स्ट्रेन. ये ना बोझ नहीं होता है. जैसे एक इंटेलेक्चुअल मनुष्य जो काम करता है, वो बोझ से थोड़ी ना कर रहा होता है. बोझ होता है इमोशनल. आई विल स्टैंड बाय हर. मैंने बोला उसको, आई एम विद यू, आई स्टैंड बाय यू. इमोशनल बोझ लिए बैठी हो. इमोशनल बोझ तो उतारना पड़ेगा सब. इमोशनल कैसे? हाँ, इमोशनल बोझ तो ये ना कि जो इसका जो कर्मिक जर्नी है, वो इसकी अलग है ना, आपकी अलग है. आपके हस्बैंड जैसे पहले चले गए आपसे, तो ये जर्नी आपकी थी, तो आपने इस चीज़ को वो करा ना, एक्सेप्ट करा ना. तो आपकी जर्नी थी इस तरीके से. अब उसकी डेस्टिनी में ये चीज़ होनी थी, तो उस चीज़ में उसने काफ़ी हद तक की चलो वो भी करी, एडजस्टमेंट होने की सबकी कोशिश भी करी, लेकिन सामने वाली पार्टी बिल्कुल ही बेकार थी. तो अब उस चीज़ से जल्दी जितना जल्दी छुटकारा हो, जैसे हमें ट्यूमर से होता है छुटकारा, वैसे हो जाए. अब ट्यूमर पे आप कितने भी पैसे लगाने को तैयार होंगे ना, कि इस चीज़ से मेरे को छुटकारा मिले, बस. जी आपने बहुत अच्छा समझाया. प्रॉब्लम्स जो होती है ट्यूमर की तरह ही आती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन उस ट्यूमर को बैगेज थोड़ी ना बना लेना है हमें अपना. अब इमोशनल नहीं हो आप, इमोशनल मत हो बिटिया के साथ भी, क्योंकि बिटिया का भी अपनी जर्नी है ना. पता नहीं कौन सी सोल कहाँ से कौन सी आ जाती है चेतना हमारे उसमें. ऐसा हमारे कोई परमानेंट रिश्ते थोड़ी ना है किसी के साथ भी.
परमानेंट तो किसी के साथ भी रिश्ता, परमानेंट सिर्फ अपने साथ रिश्ता है, वो जो अपना जो पीस का जो रिश्ता होता है, शांति का, बस। और बाकी जब अपने नहीं, साथ बहुत अच्छा समझाया दैट आई मेरे को बस कई बारी वही विमी ने बोला कि यहाँ बात करोगे शायद आपको कुछ थोड़ा बेटर फील होगा। अर्जुन कह रहा है जैसे अर्जुन के शरीर के बंदे जो जो उसके साथ में एक्सटेंशन, उसकी जो अपनी फैमिली की जो एक्सटेंशन थी, वो उसके सामने, वो उसके हाय हाय लेके जान को पड़ी हुई है। एक तरीके से उसकी जो एक्सटेंशन ऑफ बॉडी है ना उसकी, अब उसके हाथ पैर अपने ही हैं, जैसे सपोज कर लो। वो कह रहे, वो उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इनको काटो, ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो, फेंक के ख़त्म करो ना, ये पॉइजन फैला रहे हैं तुम्हारे उसमें। तो इस तरीके से होता है, हमें लगता है जैसे जो भी मनुष्य है हमारे पास में इस तरीके से आ रहा है, तो वो हमें ऐसे डील करना पड़ता है, उससे फिर इमोशनल करके नहीं करा जाता। बेटी को भी एक टाइम में आकर क्या होता है, जैसे अब मदर है, बच्चा एक होता है, तो उसको वो करती है ना, वो किसी भी तरह सुलाना चाहती है कि मेरे को 2 घंटे की नींद मिल जाए किसी तरह। ऐसे ही आपको हटाना पड़ेगा उसको। अपनी डॉटर को भी थोड़ा दिमाग से बिल्कुल करें, बिल्कुल अपना पीस में सबसे पहले खुद आना पड़ेगा, तब आप हैंडल कर सकेंगी इसको चीज़ को। सबसे पहले तो अपने आत्मा भाव में आइए कि मैं किसी की ना संगी ना साथी, सबकी अपनी जर्नी है, अपनी जर्नी पे आए हुए हैं, सबको अपनी प्ले करनी है, उसमें थोड़ी बहुत सपोर्ट जो मेरे से होगी मैं कर दूंगी बस। और जितनी भी हो सकती है उतनी आराम से कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐसी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जाने की। हम भावुकता में हम ज़्यादा एनर्जी देते चले जाते हैं उस चीज़ को, जितनी ज़रूरत होती नहीं है हमारी। तो उसमें सबसे पहले जो इमोशनल अपना जो होता है ना, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। जी ठीक समझाया आपने, बट मे बी आई वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड बाय एवरीथिंग। वो जो कंपैशन था ना, जैसे बुद्ध का जो कंपैशन था, कंपैशन वो पता है, कंपैशन इंसान कौन कर सकता है, कंपैशन वर्ड कौन यूज कर सकता है, जो खुद बीमार ना होता हो। यदि कोई दूसरे की बीमारी को लेकर वो खुद बीमार हो गया तो कंपैशन कैसे कर रहा है वो तो फिर मोह प्रेम या दूसरे के प्रति ज़्यादा घृणा हो जाना कि वो इतना ज़्यादा, वो जो दूसरा जो इंसान है जो परेशान कर रहा है वो भी सोल है एक। ये वाली दृष्टि तो कभी भी नहीं आई होगी ना, ये वाली दृष्टि जब तक आएगी नहीं ना, तो तब तक ये परमात्मा का साक्षात्कार होता ही नहीं है। पता है जैसे किसी कोई आसपास के घर में चोरी हो जाती है ना हमारे यहाँ, तो मेरे को हमेशा ना उस चोर के ऊपर तरस आता है बहुत ज़्यादा कि उसका क्या हाल होगा बेचारे का उसका क्या हाल होने वाला है। ये क्या बात हुई? क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि जो अच्छे वेल्दी जो लोग होते हैं उनको कुछ फर्क पड़ने वाला होता नहीं है। ऐसा चोर भी ऐसे घर में चोरी करता है ना जहाँ पर अच्छी वेल्थ होती है। अब उसकी तो उसने की तो जो भी मजबूरी रही हुई होगी, लेकिन उसका जो ये जो कर्म है उसको कितना ज़्यादा परेशान करा जाएगा, कितना सब कुछ होगा उसको। तो ये जो अंदर से जो ये वाला जो भाव आता है ना हमारा कि जो हेल्दी वेल्दी जो लोग हैं सब ऊट पटांग धंधों से कमा कर जो है इस तरीके से आई हुई होती है उनकी, तो इम्बैलेंस तो करते ही है ना ये लोग भी, कोई ऐसा थोड़ी ना है। तो एक तरफ से जो चोर है और उसने बेसिक यदि उसकी नीड को समझा जाए कि ऐसा वाला चीज़ थी और उसको मिलनी चाहिए थी, प्राकृतिक उस पर तो सबका ही हक होता है ना एक तरीके से, तो वो चीज़ मिलनी चाहिए थी, उसको नहीं मिल रही, उसने चुरा कर भी खा ली, कोई चीज़ ले ली, तो मतलब पता नहीं, मेरे को तो अंदर से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आता है इस तरीके से। क्योंकि उसकी कोई ना कोई मैं मजबूरी सुनना तो एटलीस्ट चाहती हूँ कि उसकी आखिर थी क्या मजबूरी कि जिस वजह से उसको ये करना पड़ा। मतलब कभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा अमीर वाले लोगों पे तो आता ही नहीं कि उनकी 2-4 चीज़ें चोरी कर भी लेगा तो उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं पड़ता। तो वो जो उस बॉय का भी ना, उसको कोई समझाने वाला है नहीं, कुछ नहीं, तो फिर थोड़ा सा आप वैसा करके देखेंगी ना तो नेचर क्या करती है कि जब हम इस तरीके से दया अपनी दूसरे के प्रति भी दिखाते हैं ना, तो नेचर हमारी सिचुएशंस को ही पलट देती है। उसके मन में ऐसे भाव भर देगी कि वो इजीली दे देगा डिवोर्स, ऐसे वाले भाव भरती है। नेचर में इतनी ताकत होती है ना, जो यूनिवर्स होती है ना। मतलब जैसे आप ये जैसे मैं जैस्मिन के केस में कहूँ कि ये जो इनका दामाद है बेसिकली क्या है कि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि इनकी 2 डॉटर्स हैं और दोनों डॉटर्स को मतलब जैसे उसको ये था कि जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई तो वो दोनों डॉटर्स को आधा आधा मिल जाएगा और उसको इनकी जैसे वेल्थ मिल जाएगी। तो वो नहीं हुआ। मतलब इनके हस्बैंड ने वही किया कि मतलब जैसे कि जब तक ये हैं तब तक इनका ही है, डॉटर्स को कोई डिवाइड नहीं दिया।
तो वो उससे पिस ऑफ हुआ है या कुछ और बात है, वो दोनों दूसरा वाला दामाद तो ठीक है, ये वाला ज्यादा उछला हुआ है। और इनके बीच में जो भी है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी दोनों हस्बैंड वाइफ में, तो अब वो डिवोर्स तक जब बात पहुंच गई है तो वो चाह रहा है कि इनका पैसा उसको, मतलब उसको इनके शेयर में से मिले, मतलब तो हाँ, वो कैसे चाहता है कि मैं अपना वो उसके पीछे पड़ा रहता है, बोल अपनी माँ को दे, बोल अपनी लव मैरिज थी पर खराब हो गया, लव शब्द तो खत्म हो गया। पर फिर he thought my husband will divide 3 ways, but my husband left it all to me कि तेरा हाथ देने में है, सब पूछेंगे, मांगने का होगा तो कोई नहीं तेरे को पूछेगा, बाहर बैठा देंगे। एंड देन अब उसको नम्रता को तंग करता रहता है कि यू आस्क योर मदर टू गिव दिस, यू आस्क योर मदर। वो पहले तो मांगती थी, फिर एक दिन गुस्सा होके मैंने कहा कि ये क्या बात है, मेरे को भी तो जीना है, तो आप सारा टाइम मांगते क्यों रहते हो ऐसे। फिर उस पता लगा कि ही वॉज पुशिंग हर टू सच एन एक्सटेंट कि मार कुटाई, ड्रिंकिंग, बहुत, मतलब इट्स वेरी अगली। का जितना कहूँ उतना कम है। नहीं नहीं, तो वो तो ऐसे वाले लालची इंसान से तो जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए तो बेटर होता है वो तो। बच्चे को मारना, उसको मारना, खाना नहीं लाना, बेसिक चीजें नहीं देना, इवन क्लोथ्स, एवरीथिंग आई प्रोवाइड। नहीं नहीं, वो तो लेकिन अपने आप को खुश मैं- रखने की कोशिश करती मैं हूँ। इनको बस इसमें ये कहती हूँ कि एक जो इनकी इसमें है कि जहाँ का माँ का प्यार इतना ज्यादा वो है कि ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, मतलब एक एक चीज प्रोवाइड कर रही हैं अपनी डॉटर को। तो मैं कह रही हूँ वहां पर आप उसको हैंडीकैप बना रहे हो। व्हेन शी इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, आप उसको थोड़ा सा तो वो अपना अपना अपने आप को, ठीक है, शी इज, आई अंडरस्टैंड कि वो इमोशनल वो है सब कुछ, पर थोड़ा सा उसको धीरे 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 उसको उससे निकालो और वो उसको ज्यादा सक्षम बनाओ। मतलब वो जरा सा वो थोड़ी सी चू हो रही है, शी इज देयर स्टैंडिंग एंड वो, अच्छा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो और वो लड़के को वो दिख रहा है कि ये माँ तो सब कुछ दे ही रही है, माँ के पास तो बहुत कुछ है, ये दे रही है। नहीं नहीं, वो तो तो मेरे वो को अब ऐसा उस लग रहा पैसे है कि लेना चाह रहा है। वो तो खाली लड़का ही नहीं बेकार हो रहा, वो लड़की भी बेकार हो रही है फिर। हाँ, दोनों मैं ही इनको बेकार यही है। कह रही हूँ कि आप उसको भी बेकार कर रहे हो, दोनों ही बेकार कर दिए उसको भी पता है, डॉटर को भी हो गया है कि भाई अब ना कि मुझे, मतलब मेरी माँ मुझे कर ही देगी हेल्प, बट उसके पास कुछ है ही नहीं विम्मी। ही इज क्लीन्ड आउट हर बैंक अकाउंट, ज्वेलरी, सब कुछ। अरे छोड़ो उसको, वो जो उसका वो क्लीन्ड आउट वो भी हो गया, बट यू हैव गिवन हर अ हाउस, यू गिवन हर अ कार, यू गिविंग हर अ राशन एंड ऑल दैट्स इट, यू डूइंग अ लॉट। आप बार बार उसको बेचारी बेचारी कह के आप उसको और बेचारी करे जा रहे हो। व्हाट, दैट इज व्हाट आई फील। That's this is the clarity I needed. Now I'm not feeling. अब उसको ये कहो कि ठीक है, आई एम सपोर्टिंग यू टिल द टाइम, बट नाउ यू डू चलो योर टाइम हो गया इनका, हम बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। सरिता जी का तो सोने का टाइम हो रहा होगा। नहीं हम नहीं, बीच में- मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी 2 बजे तक सोती हूँ। अभी तो सब इंडिया नहीं मगर सॉरी, बट बात करके थोड़ा मुझे खुद हल्का लग रहा है। थैंक यू एवरीबॉडी। नहीं नहीं, वो तो अपने अंदर ही वो सॉल्यूशन अपने पास ही होता है हर चीज का। हाँ, और कहीं पर भी ना होता ना कुछ होता, अपने अपने ही उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाता है एक्शन कोई भी। हाँ जी, अब ये एक बार मोना ने नहीं बोला इसमें, मोना और दीपा आप कुछ बोलेंगे? दीपा, हाँ दीपा बोलेंगी। मैं हाँ बोल इसमें देखो, इस चीज में मैं बिल्कुल सही बोला, सरिता जी ने, मिम्मी जी ने बहुत अच्छा चल, तो मैं इसमें एक चीज ऐड करती हूँ कि देखो बिल्कुल सोल्यूशन अपने पास है, और ऐसे उस समय ऐसे लगता है कि इसका अंत नहीं है, मतलब इससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, हम बुरी तरह से फंस गए, ऐसे हमेशा लगता है जब हम उससे डील करते हैं। तो मगर ये है कि आप अगर सोचोगे तो सोल्यूशन है, मगर हम उसको लेते नहीं है ना, मतलब देयर इज अ सोल्यूशन, पर वो हमारी आसक्ति को नष्ट करके फिर वो लेना होता है, जैसे अर्जुन के साथ किया कि उसको आसक्ति को छोड़ के। तो अब जैसे मैं अपना बताती हूँ, जैसे मेरी पहले सिस्टर लॉज जब भी मैं जाती थी, इनकी शादियों तक भी जाती थी, तभी वो मुझे कुछ ना कुछ बोल के ही, डांट के ही भेजती थी, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बट एक हैबिट हो जाती है, हैबिट हो गई। और अब मैं नहीं जाती, अब बुलाती है, अब नहीं जाती मैं, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड, जब से मेरी मदर की डेथ आई हैव रियलाइज्ड कि भाई कोई तो दया भाव नहीं है ऐसे लोगों में, बिल्कुल भी नहीं है।
जो वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, आप देख लो, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, तुम देख लो, अब तो मन नहीं है। तो अब वो उनका, अब ईश्वर की तरफ की यात्रा करनी है कि इनकी तरफ की डांट खा के मरना है, ठीक है ना। तो एट ऑल टाइम्स, अब पहले मेरे हस्बैंड मेरे को डांटते थे कि नहीं चलो तुम चलो, तो बहुत ज्यादा वो होता था, मैं फिर भी करती नहीं थी, मैं कॉम्प्रोमाइज करती रहती थी, करती रहती थी कि चलो बच्चे, घर तो चल रहा है। पर अब जैसे मैं इतना झगड़ा करती हूँ, इतना करती हूँ, पर अब वो खुद ही कहते कि ठीक है तुम रहने दो, क्योंकि उनको अब पता है कि वो तो उसने तो मानना ही नहीं है। तो जब एक सिचुएशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ये चीज है, तो और इससे हमें लड़ना ही है, तो जो मर्जी जहां जहां भी जा सकते हो लड़ो उससे, चाहे स्पिरिचुअली भी आप जाओ, भाई एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी पूजा पाठ के थ्रू भी जाइए आप अपने आप को, क्योंकि जरूरी नहीं है, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना, थोड़ी सी अगर आप एंड के एस्ट्रोलॉजर्स से एक अच्छे है उससे भी हेल्प लोगे, कुछ अपने कर्म कर जाता है पूरा पूजा पाठ से। तो दिस इज माय पर्सनल व्यू ऑन दिस, मतलब आई डोंट नो कि कोई एग्री करे या नहीं। अच्छा, मेरा तो इसमें ये व्यू है कि जैसे कर्म का कटना और ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये भी चीज़ कुछ मैटर नहीं करती है। जैसे एक प्रकृति होती है ना, अभी ये जैसे इस तरीके से जो चल रहा था, जैसे कोई पेड़ की एक टहनी मेरे घर में आ रही है और वो मेरे को बार बार आके हर्ट कर रही है, तो मैं उसको हटाने की कोशिश करूँगी ना। ऐसे होते हैं ये सारे जो सोए हुए जो लोग होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं। तो उसमें किसी उस पर जाने की जरूरत नहीं, हमें दिख रहा होता है कि ये हर्ट कर रहा है, इसमें चेतना है ही नहीं नाम की भी। तो ये प्रकृति, इसको ऐसे ही उसको फूड की तरह से समझ के उसको हटाना पड़ेगा ना, हमें हटाना पड़ेगा उसको। नहीं, पर मैं एक चीज बताऊं, इसमें मैंने जो देखा, देखो पर्सनली मैं बोल रही हूँ कि ये चीजें हेल्प तो करती है पूजा, क्योंकि अब आप देखो, क्योंकि अब हम, क्योंकि इतने सालों से हम लोग गीता सेशन कर रहे हैं, फिर भी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, थोड़ा सा हम लोग को ये है, 4 लोग से डिस्कस कर लो या बोल दो, फिर भी उससे निकलने का रास्ता है। जहां इंसान अकेला होता है तो वहां उसको निकलने का रास्ता, अच्छा यार, तो आप सोचो ईश्वर का ही साथ ले लो, चलो कृष्ण का साथ ले लो कि भाई मुझे निकालो बार, तो गुरु जी कहते हैं कि ईश्वर परिधाना, मतलब कि हेल्थ में कि आप ईश्वर पे छोड़ो कि और उसी का सहारा लो, क्योंकि मनुष्य में किसी में इतना बल है ही नहीं कि आपको हेल्प कर सकता है। वो कर भी लेगा तो भी वो वाली बात नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली जब आप, हाँ दीपा, ये जो तुम बोल रही हो ना कि ईश्वर का वो करना है, ईश्वर तो हमारे स्वयं के अंदर है ना, हमें दिख रहा है, तो हम ही तो हैं। सहारा किसका लेना है? हम ही तो है ईश्वर। देखो वो स्टेज तो नहीं आई ना, वो वाली तो आप कहा नहीं, जैसे जो उसकी जो आपने एस्ट्रोलॉजर वगैरह की बात करी कि वो कर्म काट देंगे, कर्म मेरा अभी घट रहा है, वो कौन सा कर्म काट देगा मेरे को अभी घट रहा है। मैं ये नहीं कह रही वो कर्म काट लेगा, मैं बोल रही हूँ हेल्प लो, मतलब थोड़ा पूजा पाठ वगैरह करने से फर्क तो पड़ता ही है, ऐसा तो नहीं है कि आप सोचते हो कि नहीं पड़ता जैसे है। अभी करंट में मेरे को कोई दिक्कत आई है अभी मुझे, तो अब उसके लिए मैं कौन सी पूजा करूंगी? अब उसके बाद में मेरे लिए पूजा क्या है? पूजा नहीं, देखो कोई भी कर्म करेगा, कोशिश कर सकते हैं, क्या रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, पर एक जैसे कि कोशिश इंसान करता है, तो मतलब मुझे ये लगता है कि भाई जैसे कोशिश जो होती है ना, वो हर तरफ से करनी चाहिए। तो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वे। मैं ये नहीं कह रही कि आप यही करो, मैं कह रही हूँ दिस कैन बी वन ऑफ द वे, बस। चलो एक बार इनसे भी पूछते हैं जरा। हाँ अनामिका जी जरा। वो जो कह रही है कि हाँ दिस कैन बी वन ऑफ द वे। अब जैसे कल मेरे जब हस्बैंड आए तो वो किसी से मिले थे, तो वो भी इनका बता रहे थे, ये जो गुरुजी जो बहुत दिल्ली में जिनका कहते हैं काफी लोग फॉलोअर्स हैं, तो वो अपना कोई इंसिडेंट बता रहा था। उसके फादर को भी कैंसर था और काफी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल जैसे मरने की स्टेज पर, और किसी ने उन्हें कहा कि ये गुरुजी के आश्रम, ना गुरुजी इज नो मोर बट पीपल बिलीव अ लॉट एंड ऑल दैट, एंड वो कहा कि जी गुरुजी के आश्रम में जाके उनको तब से उनके अंदर चेंज आया एंड वो सब कुछ एंड ऑल दैट। तो माय हस्बैंड केम एंड टोल्ड मी कि मतलब मेरे ब्रदर को कि जी गुरुजी के मतलब उसको कहे कि एक बारी दिल्ली आ जाए एंड ऑल दैट।
तो मेरा जो पहला वो था, मैंने कहा समहाउ आई डोंट बिलीव, तो पहली बार मेरे अंदर से वो बिलीव वाला नहीं आया, एंड आई सेड मेरा भाई तो बिल्कुल नहीं बिलीव करेगा, पर ठीक है, देर इफ देर इज एंड ऑल दैट, वो कहते हैं ना कि अब और कुछ जब नहीं दिखता कि जैसे, तो उस रास्ते को भी, चाहे इवन इफ माई बिलीफ इज नॉट देयर, बट लिसनिंग टू किसी और का अनुभव, यदि उसके वो हुआ, तो इफ आई, देर इज नो हार्म इन ट्राइंग दैट रूट ऑल्सो। मतलब ये नहीं कि आप बाकी आपने दरवाजे बंद कर दिए कि उसकी कीमो हम बंद कर दें या वो कर दें, तो जैसे अब उसने आयुर्वेदा का थोड़ा बहुत कहना है, तो इट इज ठीक है, ही इज एक्सप्लोरिंग अदर एवेन्यूज, मे बी वाला, कि वो कहते हैं किस चीज, जैसे अब हम वही करते हैं, जब आप लोग सब कहते हो कि वही जैसे हर्षा जी चैंटिंग की या वो है, किसकी कौन सी ब्लेसिंग्स कहाँ से वो कनेक्ट, कौन किसको वो एक वो दे जाए। अब जैसे अब यही इसने जैस्मिन ने हमारे साथ डिस्कस कर लिया, तो कहीं पर उसका शी केम इन दैट, उसने ये पाथ लिया जहां पर उसने गीता सेशन में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा कंफर्ट मिला होगा। सो इट्स जस्ट दैट कि व्हेन होगा या नहीं होगा उससे नहीं, बट देयर इज नो हार्म इन एक्सप्लोरिंग, जो मुझे लगता है। और शायद वो जब आप एक्सप्लोर करते हो तो आपका सोल्यूशन भी निकल सकता है, और आपका जो मेन प्रॉब्लम है उससे कहीं आप दूसरा जगह भी, ध्यान भी दूसरी जगह जा सकता है, कि जिससे आप थोड़ा सा वो हल्के हो जाओगे। करना तो एक्चुअल में वही है, तुम्हें खुद ही करना है। लाइक व्हेन आई लुक एट माय ब्रदर, मैं उसको ये कहती, मैंने कहा देख, करना तो तुझे ही है, तूने फाइट करना है, तूने वो पानी पीना है, तूने वो दवाई खानी है, तूने वो पेन भी यू हैव टू गो थ्रू। ये और चीजें हैं कि जब तुम्हें पता ही है, व्हेन यू नो देयर इज नो, हाँ क्या वो है। हाँ जी, अनामिका जी आप क्या कहती हो? मेरा कहना है। हाँ, इस अनामिका जी, हाँ अनामिका कहाँ गायब हो गई? चलो ठीक है, और किसी को कुछ तो कुछ नहीं कहना। हर्षा जी आप कुछ कहेंगी? नहीं, चलो सब मैं जैस्मिन जी को इतना ही कहना चाहती हूँ कि परख वो तो नहीं है ग्रुप में, वही है ना। चलो नहीं, पर मैं अपने शेयर करती हूँ कि परख होना बहुत जरूरी है इंसान का। आज जो है ना, हमारे जो सत्संग में थे ना, जब मैं जहाँ जाती थी ना, तो एक लेडी का हस्बैंड तो देहांत हुआ था, तो भगवान का, गुरु जी का आदेश आया कि 13 दिन नहीं, महीना दिन तक कुछ साइन नहीं करोगी तो पेपर, हाँ, क्योंकि तुम्हारा मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। और क्या होता है कि आजकल बोलते हैं अपना बेटा को भी परखो, घर वाले को भी परखो, सबको परखो, तो इतना बने के ये जरूरी है परख। तो इनका जो जमाई का जो स्थिति है, ही इज अ ग्रीडी पर्सन, और ऐसे कई दाखले हम देखे हैं कि जहाँ जमाई एक्सप्लॉइट करते ही जाता है पैसे के लिए, देयर इज नो रियल लव लॉस्ट। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड का भी अभी जो स्टोरी बोल रहे हैं, जो यही नर्क में कूदने वाली है उसकी बेटी, द बॉयज रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि ही इज नॉट गुड, देयर मीन्स कि गुड लुकिंग बट नॉट गुड फैमिली, बट वो लड़की उसके पीछे एकदम वो है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना जर्नी, जो आप बोलते हैं ना, वी चूज आवर जर्नी समटाइम्स, तो आई थिंक दिस परख होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, मोना आप क्या कहती हो? बहुत जरूरी है। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, ये एक मतलब अच्छा, बड़ा मतलब सिचुएशन बड़ी वो हो गई। नहीं, ये तो मन की होती है यात्रा, बस और कुछ नहीं है। मन बार बार कहता है ना, ये सारे कर्म के खेल हैं। मतलब अगर लव मैरिज है तो फिर ये होना नहीं चाहिए। लव मैरिज के बाद भी ऐसे हो रहा है, हमारे जैसे अरेंज मैरिज का तो समझो भी हो जाए तो मैं तो खुद ऐसा भुगता हुआ, बस एक ये फर्क है कि फिजिकल नहीं कुछ हुआ। चलो जी,
नहीं, मैं दीपा की बात पर कहना चाहती हूँ कि दीपा जब जो कह रही है ना कि शी वॉज गोइंग थ्रू ऑल दैट, और फिर उन्होंने ये कॉल लिया या डिसीजन लिया कि वो नहीं जाएंगी, ये जो ये नेगेटिव है, इनकी नंदे बंदे नेगेटिव हैं, सो शी टुक अ स्टैंड कि मैंने इनके सामने ही नहीं जाना, और फिर फाइनली शी कुड कन्विंस हर हस्बैंड कि कहते हैं, तो हस्बैंड वो देन ऑल्सो ओके विद दैट कि ठीक है नहीं जा रही। तो फाइनली इट वाज जो क्या कहते हैं कि शस्त्र या अस्त्र इन्होंने खुद उठाया कि नो, शी टुक द स्टैंड। एंड रही बात कि दैट फाइंडिंग सोलेस इन ईश्वर के नाम पर एंड ऑल दैट, एक वो हम लोग एज ह्यूमंस हम एक फिर भी मतलब एक चाहे हम अपने आप को जितना भी स्ट्रॉन्ग कर ले, पर वो इमोशन मन तो है ही ना, तो वो एक सुलेस कंफर्ट हम चाहते हैं। तो वो सुलेस कंफर्ट चाहे ईश्वर के नाम से मिले, चाहे कोई हम पॉडकास्ट सुन के किसी ने कुछ कहा, चाहे इस तरह के जब हम अपने सत्संग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, तो वो एक थोड़ी सी हैंड होल्डिंग तो वी ऑल लुक अप टू। सो इफ शी फील्स इफ शी गेट्स दैट कंफर्ट in the presence of God, कि उनका भजन या जो भी वो कहते हैं मंदिर में बैठ के आराम से, इट्स जस्ट दैट पीस ऑफ माइंड, यू आर फाइंडिंग योर ओन वे कि आपको किस तरह से वो पीस ऑफ माइंड, एक पीस ऑफ माइंड इन्होंने कर लिया एक्ट करके, जहां पर इन्होंने वो स्टैंड ले लिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी उनके वहां पर। दूसरा पीस ऑफ माइंड फिर भी वो मन में थोड़ा उथल पुथल वो है, तो शी इज अनदर पीस ऑफ माइंड, शी इज अनदर पाथ विच शी हैज चोजन इज की ठीक है वो उस राह पर रहकर। तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। अल्टीमेटली शी इज केटिंग टू हर नीड ओनली ऑफ पीस ऑफ माइंड, उसमें फाइनल वही है। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे मन जो है हमारा एक चीज से परेशान हो रहा था, इस चीज से हमने अपने आप को दूसरे के इससे अपने आप को विड्रॉ करा लिया। अब मन फिर परेशान हो रहा है वापस बैठे हुए, तो मन ही परेशान हो रहा है ना। तो मन को इस तरीके से बार बार आप दूसरी तरीके की चीजें देते चले जा रहे हो, चाहे उसमें ईश्वर का नाम दे दिया उसको, चाहे आपने शॉपिंग दे दी थोड़ी देर के लिए बुलवाने के लिए उस पोजीशन को। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये मन ही चाह रहा है, बस मन ही परेशान हो रहा है, तो इसको मन को ही छोड़ो, मन को ही गोली मार दो। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली सरिता जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप भी। जैसे डिस्कशन हो रही, तो जैसे मैंने रियलाइज किया, जैसे कि हम सब कोई भी इसको फेस करता है तो रियलाइज करता है कि जानबूझ के मोस्टली जो कंटिन्यूसली करते हैं ना लोग, तो वो एक तो सोई हुई अवस्था में करते हैं और जानबूझ के करते हैं। उनमें दया नाम की मैंने देखा बिल्कुल भी चीज नहीं है, दया नाम की चीज नहीं है। इनफैक्ट एक डेमनिक वो है, एक ऐसे लोगों में ना डेमनिक प्रवृत्ति होती है एंड सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा होती है, सब में है मगर उनमें अधिक होता है। तो आपको देखना है कि कब तक अब आपको करना है। अब तो इनफैक्ट मैं कह रही हूँ नहीं जा रही हूँ तो ज्यादा क्लियरली दिखती है चीजें। तब तो एक थॉट प्रोसेस था, नहीं ये करना है, ड्यूटी है, निभाना है, ला। और अब अगर आप जब विड्रॉ करते हो तब आप साक्षी की अवस्था में ज्यादा आप आते हो, देखते हो कि ये ना पता क्या था, आप भी वो भी फूड थी, वो भी वैसी थी और आप भी फूड थी, तो दोनों में आपस में क्रिया प्रतिक्रिया चल रही थी, समझे क्या मतलब? आपसे उनको एनर्जी मिल रही थी ना, आप वो सताना चाह रहे हैं, आप सतरी हो, तो दोनों को मिल रही है ना एनर्जी एक दूसरे से, आप दे रहे हो। वो उसका कारण मेन तो मेरे हस्बैंड ही थे ना, मतलब मेन तो मेरे हस्बैंड ही थे। हस्बैंड वगैरह को छोड़ दो, हस्बैंड से नहीं होगा ना वो वाला, जो बैर वाला जो रिश्ता था वो आपके साथ था उनका, बैर का। तो लेकिन बैर को जो अंदर से जो फूड जो मिल रहा था वो किससे मिल रहा था? आपके परेशान होने से मिल रहा था, पता है? हाँ वो परेशान होने से मिल रहा था। आपने भी टक्कर था, ऐसा नहीं, ऐसे वो ही करती थी, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अकेले कुछ नहीं कर सकता। कोई भी हो गया, A to Z कोई भी हो गया, बात वो नहीं है, कोई भी हो गया। लेकिन वो आप हम ना वो देते हैं, हम इनडायरेक्टली इस तरीके का फूड हम दूसरे के लिए हम उपलब्ध है ना, वो जो हमारे साथ करना चाहते हैं हम करने दे रहे हैं उसे, करने बिल्कुल ठीक है, करने दे कोई रहे हैं, इंडिफरेंस नहीं आया।
इंडिफरेंस नहीं आया तो कि चल, अभी है ना? अभी भी यदि आपके अंदर इंडिफरेंस अभी भी नहीं आएगा ना, तो दूर बैठे भी मिलती रहेगी उनको डोज। आप यदि हाँ। बिल्कुल नॉर्मल रह रही है ना अब, तब डोज मिलनी बंद होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, जब आप सही कह रही हो, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट ठीक कह रही आपके हो। अंदर से इतने सी भी हल्की सी भी तरंग नहीं आई मन में, तब आपके अंदर यदि हाँ। बाहर के जगत से मन में आपके तरंगे आ रही हैं, तो वो तरंगे जो आ रही हैं वो दूसरे की तरफ भी जा रही हैं। वो हाँ, सही कह रहे हो, वो बिल्कुल तरंगाई पहले वाइब्रेशन अपना, तो जारी और है। फिर क्या होता है, ये जो हम मटेरियल के साथ में चल रहा है, जैसे H2O और उसका चलता है ना CO2, ये सब जो मिलाते हैं हम, जो कॉम्बिनेशंस उसमें बनते हैं ना, तो ऐसे वाले हम ऐसे बने हुए होते हैं एक दूसरे के लिए, जब तक हम अपने आप को नहीं जानते। ऐसे चलता है ये मन का खेल। तो मन में ये जो जब तक तरंगों से अलग बैठे हुए उसकी तरह से नहीं रहोगे ना आप, यदि आपका मन किसी दूसरे के करने से यदि कर पाता है, वो बार बार इफेक्ट हो रहा है, तो वो आपकी ही परेशानी है। तो उसी पे ही काम करना है आपको बार बार, क्योंकि कोई। बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ, ये विम्मी जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी विम्मी जी कहिए। हाँ, बिल्कुल। नहीं, नहीं, कुछ नहीं। आप बिल्कुल सही है, मतलब यही है कि अपना ही है, अपने ऊपर ही वर्क करना है। वो दे रहे हो आप उनको वो एनर्जी दे रहे हो, मतलब आप जब उसका आप एक तरह का उसका हिस्सा बन रहे हो। वो आपको ये देख के, जैसे वो क्राउड होता है ना, जैसे जब ये रॉक स्टार जो हम जैसे वो, मतलब जब स्टेज पर आप होते हो, तो आपकी आधी एनर्जी तो उससे आती है जो क्राउड से आती है। यदि क्राउड मरियल होके बैठा होता है ना, तो आपकी भी फोर्स हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि वो आपको वो देख रही है कि आपको इफेक्ट हो रहा है, तो वो उसमें और मजा लेते हुए वो और कर रही है। सो द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग देम, वो आप पानी देना उनको बंद कर दो, वो अपने आप सुधर जाएंगी। तो अपने और वो आप कर रहे हो, वो सब बंद कर दिया, वही मैं कह रही हूँ ना। आप कर रहे हो वो। हाँ, वो सब पर मैं कह अभी रही भी हूँ, उस वो सब थॉट को मैंने लेके नहीं आओ। हाँ, कि you've done the right thing, मतलब you've done the right मैं thing। उनको वो एग्जाम्पल दे रही थी कि भाई खुद ही करना पड़ता है, कि भाई नोबडी इज गोइंग टू डू इट। और कितने घर में फाइट करके किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि ये इजी नहीं था कि भाई इतना। मैं तो बोल दिया, मैं 6 महीने तक तुम्हारे घर में कलेश होगा दिन रात, तू देख ले, इफ यू आर रेडी टेक मी। तो वो माना। ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए इतना जबरदस्त फाइट करके आपको इस स्थिति में भी आना, मतलब। और आफ्टर मेनी मेनी इयर्स आई थिंक जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है ना, तब एक तरह से कुछ चीज अंदर भी मर जाती है। मतलब आई थिंक मेरी मदर जब मरी ना अभी 2 साल पहले, तो कोई चीज अंदर मर गई है एक तरह से। टॉलरेंस मेरी सब खत्म हो गई, जीरो हो गई टॉलरेंस अब अन्याय के प्रति। वो तो ऐसा मुझे लगता है। उस दिन सुरेश जी कह रहे थे ना, जब वो चंडी रूप का बात हो रही थी, तो वही है कि वो चंडी जो बनी वो भी तो देवी थी ना पहले। तो हम लोग वो देवी बने ही रह जाते हैं। तो हमें वो चंडी रूप में आना, जहाँ आना है वो आना है, वो करना पड़ेगा। वही बार उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कौन से वाली चीज का लेने पड़ेंगे मेरे को, कौन से अपने सेफगार्ड लगाने पड़ेंगे, ये सब चीजें। वो सोचती हूँ कि वही ना, देखो वो जो 7 दिन, जो देवी के 7 दिन हम कहते हैं, हर दिन देवी दूसरे रूप में है। वो मतलब लोग ठीक है पूजा कर रहे हैं, वो है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उस हर एक रूप का के पीछे, मतलब हर एक रूप का एक अपना मतलब है। सो व्हाट इज बीइंग ट्राइंग टू से कि आप इस रूप की भी पूजा करो, मतलब अपने आप में, अपने ये 7 रूप तुम्हारे अंदर ही हैं। कौन से किस समय किसको जागृत करना है, दैट इज अगेन, तो वो असली पूजा है, ना कि ऊपर ये जो भारी कर्म कांड करके और व्रत रख के। वो 7 को समझो, उस कैरेक्टर को समझो, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बिकम दैट। ये होता है ना, जैसे मैं अपने अंदर से शिव को पूजती हूँ ना, शिव को पूज रही हूँ मैं, तो मेरे को अंदर से जो शिवत्व है, जिस पर कुछ भी नहीं टिकता,
तो वो शिवत्व वाली अवस्था मुझे बार बार अपने अंदर की प्राप्त करने के लिए बाहरी सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे चलता अंदर और बाहर का। तो वो बाहरी अवस्था में शिवत्व को पूजना हुआ जो मेरा हथियार उठाना था। शिव की पूजा हुई वो मेरे अंदर, क्योंकि मेरा मन जब तक शिवत्व वाली अवस्था में नहीं जाएगा ना, जो अच्छा बुरा कुछ भी ना टिके मेरे मन में। अच्छा फूल भी नहीं टिकता शिव पे, और कुछ भी चढ़ाते हो आप शिव पे टिकता नहीं है कुछ भी। तो इस प्रकार से मेरा मन हो जाता है। तो वो मन को ऐसी अवस्था में लाने के लिए मुझे भारी कर्म कौन सा करना है, अब ये चीज़ पता चलती है। उससे क्या पता चलेगी? तो वो शिव की पूजा हुई। भारी कर्म क्या करना है उसमें यदि कोई ये सामने इस तरीके से लोग खड़े हैं मेरे चारों तरफ में, तो मेरे को पता चल जाएगा ना कि वो शिव पे मेरे को जाने के लिए, शिव वाली अवस्था प्राप्त करने के लिए मुझे भारी तौर का क्या कर्म करना है। अब हथियार उठाना है, मेरे को शांति से बैठनी है, इस मनुष्य को पूजना है, करना है। मेरे मन में कहाँ पर मेरे विचार खत्म होते हैं, मैं वो वाला कर्म करूँ। इस तरीके से करा जाता है। वो पूजा पाठ हमारा कहीं बाहर जाने से नहीं होता है। बस मैं उस चीज़ का कहना चाह रही थी कि जैसे ये जो हम पंडितों पे जाते हैं ना, ये करते हैं, तो वो लोग तो हमारा और शोषण करते हैं। उनको पता चल जाता है आ गया बकरा अब कटने के लिए, ये चीज़ होती है। कुछ आनी जानी नहीं होती। अंदर के शिवत्व को पूजो। अंदर का शिवत्व को जो पूजते हो उसमें भारी कर्म अपने आप पता चलते हैं कि अब इस समय मेरे को क्या करना है कर्म। ऐसे चलता है, वही योग होता है। बस उसी चीज़ को कहा जाता है योग। क्योंकि जब तक मैं विचलित वाली अवस्था में रहूंगी तो मैं बैठ नहीं पाऊंगी ना शांति से। शांत अवस्था मेरी शिवत्व है। आ गई समझ में दीपा? ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? हाँ हाँ हाँ। बाहरी कर्म मेरा अंदर के शिवत्व से निर्धारित होना चाहिए। अंदर का जो शिव पूजना है। देन सिटिंग, मतलब भगवान नाम से आप उसकी शरण में जा रहे हो, या म्यूजिक चला के डांस कर रहे हो, चाहे शॉपिंग कर रहे हो। इस बंदे को पूरी तरह से अभी मेरे को अनदेखा करना है। और अब इसको जो है खड़े होके, अभी मेरे अंदर एनर्जी है तो अभी इसका अभी निस्तारा करूंगी। तो ये चीज़ पूरी तरह से पता होनी चाहिए। अपनी भी एनर्जी का देखना पड़ता है लेवल। कई बार होता है हम ही कई बार स्वस्थ नहीं होते, वैसी वाली अवस्था नहीं होती कि हम हैंडल कर सकें। तो उस समय छोड़ दो, उस समय भूल जाओ। उस समय ऐसे हो जाओ दृश्य जैसे तुम धरती पर नहीं हो, और जब तुम फेस करने लायक हो वो सिचुएशन को, तो तब उस समय हैंडल कर ली। बस अपने हाथ अंदर बाहर समाधि में ऐसे जाना आना चाहिए जैसे फ्रिक्वेंटली अंदर जाके बैठ गए गर्भ गुफा में, पता भी नहीं दुनिया को हो भी तुम धरती पर। और जब बाहर आए तो पूरी तरह से जो है वो सिचुएशन को फेस करने के लायक हो पूरी तरह। हमारा माइंड हमेशा एक जैसा नहीं होता ना। कई बार बड़ा वीक महसूस कर रहा होता है, कई बार बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है, हेल्दी महसूस कर रहा होता है। तो अपनी माइंड की हेल्थ को देखकर हमें करना चाहिए काम। शरीर को तो छुपा लो बस उस समय। फिर यदि माइंड हमारा हेल्दी नहीं है ना, उस समय अंडरग्राउंड हो जाओ बस। और अंडरग्राउंड हो जाओ, अंडरग्राउंड मतलब गर्भ गुफा में चले गए। और फिर उसके बाद में बाहर आओ वापस, जब हेल्थ अच्छी हो, जब माइंड की हेल्थ अच्छी हो, शरीर की हेल्थ अच्छी हो, जब आओ बाहर। ये सारे हथियार होते हैं, ये इस तरीके के हथियार अपने लेके चलने चाहिए टोटल। चलिए जी, बहुत लंबा सेशन था। अनामिका जी कुछ कहना चाहेंगी? आपके मुझ से सुना नहीं कुछ। अनामिका जी को तो जागृति पूरी तरह से हो चुकी जी। अनामिका कुछ बोलो। आज तो बोली नहीं अनामिका। चलो ठीक है जी, ओके जी, चलो कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्ण। कल मैं नहीं अटेंड कर रही होंगी। अच्छा, मेरा साइड। अच्छा, तो आप उसका वो करोगी क्या? बिम्मी जी उनसे बात कर लीजिएगा फिर आप सुरेश जी से। हाँ, उनसे बात कर लो। सैटरडे हो आप? सैटरडे को हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तो सैटरडे आप हैंडल कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।